Welcome to my channel AgriMed Easy. This is Swati, and in today's lecture, we will be covering the second chapter of H.C. Dubey, that is domain Eukarya, characteristics and classification of fungi. And chapter first के link description में given है. If you haven't watched it yet, then please go and watch it. So, without any delay, let's start the today's lecture. So in today's lecture, we will read about the domain Eukarya, and from previous lecture, we know that there are total three domains according to Calvus classification. First is bacteria, second is archaea, that is archaebacteria, and third is Eukarya. So Eukarya में we'll mainly focus on the fungi. ठीक है? And now we'll move to our main topic, that is fungi, their characters and classification. So whenever we hear the word fungi, the question comes in our mind is कि what is fungi and why do we need to study about it? ठीक है? So fungi क्या है? Fungi are group of eukaryotic heterotrophic organism जिनकी सेल वॉल काइटिन, बीटा ग्लूकन एंड सेल्यूलोज से बनी होती है एंड दे रिप्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्पोर्स. एंड इसमें क्या क्या आते हैं? मशरूम, मोल्स, यीस्ट एटसेट्रा. So basically, what are fungi? Fungi is a group of eukaryotic heterotrophic organisms with cell wall composed of chitin, beta-glucan and cellulose in some of the fungi, and they bear both sexual and asexual spores, and these include mushrooms, mold, yeast, etc. If you define the fungi in simple terms, so fungi is basically eukaryotic, heterotrophic, developing branching filaments and reproduced by spores. ठीक है? So fungi are very diverse. Fungi are very diverse, and in H.C. Dubey book it is written that due to the vast nature and diversity of fungi, these fungi are classified into fungi, protozoa and stramnophila. Okay. So let's come to the second question, that is why should we study fungi? हमें fungi को क्यों study करना चाहिए? So there are various reasons due to which we need to study fungi. सो इसका जो मेन रीज़न है वो ये है दैट ये जो फंजाई है वो बहुत सारे प्लांट डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो इन प्लांट डिजीज़ को मैनेज करने के लिए हमें फंजाई के नेचर, उनके कैरेक्टर, उनके बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टडी अबाउट द फंजाई. सेकेंड इज दैट ये जो फंजाई हैं दीज आर मेजर डिकम्पोजर्स. मतलब कि ये क्या करते हैं, ये सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रिसाइकल करते हैं एंड सॉइल की हेल्थ को मेंटेन रखते हैं. Then third है that they are used in industries. They are useful in industries, especially baking and brewing industries. ठीक है? And last है that ये जो fungi है ये फॉर्म करते हैं symbiotic association जैसे कि mycorrhiza and lichen, जिसके बारे में हम इसी लेक्चर में आगे पढ़ेंगे. ठीक? So now let's study about the characteristics of fungi. So first character is nutrition. अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें देन फंजाई में हेट्रोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. नेक्स्ट इज थैलस. थैलस यानी कि बॉडी ऑफ फंगस. सो बॉडी ऑफ फंगस में बी यूनिसेलुलर, फिलामेंटस और ओकेजनली प्लाज्मोडियल. सो अगर हम फंजाई की सेल वॉल की बात करें सो फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन, बीटा ग्लूकन एंड सेल्यूलोज से. सेल्यूलोजिक सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है? ऊमाइकोटा में. देन न्यूक्लियस की अगर हम बात करें सो फंजाई में स्मॉल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, वेरी स्मॉल न्यूक्लियाई. देन है लाइफ साइकिल. सो अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें सो फंजाई में हमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक सारे लाइफ साइकिल देखने को मिलते हैं. देन सिक्स्थ है सेक्सुअलिटी. सो सेक्सुअलिटी की अगर हम बात करें सो फंजाई एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड पैरासेक्सुअल तीनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं. सो इफ यू टॉक अबाउट द हैबिटेट सो फंजाई आर यूबिक्यूटस. यूबिक्यूटस यानी कि दे आर वेरी कॉमन, लाइक दे कैन बी आइदर सैप्रोक्स और पैरासाइट्स और सिम्बायंट्स. ठीक है? अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें so they are fungi are cosmopolitan, मतलब कि they are distributed all over the world. So these were the characteristics of fungi, and now we will read each and every characters in detail. So now let's study the characteristics of fungi in detail. So first character is nutrition. So हमें पता है that fungi are heterotrophic. Heterotrophic means they are dependent on others for food. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, दे आर नोन एज हेट्रोट्रॉफिक. देन फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दैट इज एब्जॉर्प्टिव एंड होलोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है? सो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि पहले क्या करते हैं फंजाई, जो भी फूड होता है, फूड पार्टिकल्स, उसको बाहर में ही एंजाइम सिक्रीट करके डाइजेस्ट कर लेंगे एंड देन आफ्टर उसे अब्जॉर्ब करेंगे. देखते हैं कैसे करते हैं ये.
सो पहले ये मान लो कि ये फंजाई है और ये जो फंजाई है इसे इस फूड को एब्जॉर्ब करना है, बट ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये क्या है, इनसॉल्युबल। सो इन फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए दे विल सीक्रेट सम एंजाइम्स, और ये जो एंजाइम्स है ये क्या करेंगे, इस इनसॉल्युबल जो भी फूड पार्टिकल्स है इसे सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देंगे, एंड देन जब ये सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाएंगे देन फंजाई इसे आराम से एब्जॉर्ब कर लेगा। सो दिस इज बेसिकली द एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें क्या होता है कि इनसॉल्युबल पॉलीमर का डिग्रेडेशन होता है, सॉल्युबल यूनिट्स बनते हैं, एंड ये जो सॉल्युबल यूनिट्स हैं ये फंजाई एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो फंजाई कैन आइदर लिव एज अ पैरासाइट, सैप्रोफाइट और सिम्बायंट्स। सो सबसे पहले समझते हैं दैट व्हाट आर पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट। सो पैरासाइट क्या होते हैं, कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग होस्ट पे डिपेंडेंट है, टोटली डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए, या फिर बोले तो अपने न्यूट्रिशन के लिए। जो भी ऑर्गेनिज्म टोटली लिविंग होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं दे आर नोन एज पैरासाइट। अगर सैप्रोफाइट की बात करें सो सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, दे आर नोन एज सैप्रोफाइट्स। सो इसमें फर्स्ट है ऑब्लिगेट पैरासाइट। सो ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या है कि ऐसे फंजाई जो कि टोटली डिपेंडेंट होते हैं लिविंग होस्ट पे अपने सर्वाइवल या फिर न्यूट्रिशन के लिए, एंड अगर इन्हें लिविंग होस्ट नहीं मिला देन दे वोंट सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ लिविंग होस्ट। ठीक है, सो ऑब्लिगेट टर्म का मतलब कि अगर ये पैरासाइट है तो ये हमेशा ही पैरासाइट रहेंगे, यानी कि ऑब्लिगेट पैरासाइट आर ऑलवेज पैरासाइट, मतलब कि ये बिना लिविंग होस्ट के जिंदा नहीं रह सकते। एंड इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, पॉक्सीनिया, ग्रैमिनेस, उस्टिलागो, मेडिस, एल्बिगो कैंडिडा। ठीक है, रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, दीज आर मेनली द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। सो नेक्स्ट है ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट। सो ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट मीन्स ऐसे फंजाई जो कि बस डेड एंड डिकेइंग मैटर के प्रेजेंस में ही सर्वाइव कर पाएंगे, अगर डेड एंड डिकेइंग मैटर नहीं रहा सो दे वोंट सर्वाइव, मीन्स कि दे आर ऑलवेज सैप्रोफिटिक, अगर इन्हें सैप्रोफिटिक कंडीशन नहीं मिली तो ये सर्वाइव नहीं करेंगे। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं, राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस। ठीक है, सो नेक्स्ट है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। सो फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स में क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स या फिर ऐसे फंगस जो कि एक्चुअली क्या है, पैरासाइट है, बट दे कैन ऑल्सो मैनेज टू सर्वाइव एज सैप्रोफाइट इन द एब्सेंस ऑफ लिविंग होस्ट। मतलब कि ऐसे फंजाई जो कि है तो पैरासाइट लेकिन अगर लिविंग होस्ट अगर नहीं मिला उनको तो वो सर्वाइव कर सकते हैं एज अ सैप्रोफाइट ऑल्सो। सो फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट में हमें क्या याद रखना है, दैट फैकल्टेटिव वर्ड का मतलब है कभी कभी, यानी कि ये कभी कभी सैप्रोफाइट रहेंगे एंड ये हम मेनली क्या रहेंगे, पैरासाइट। ठीक है, सो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, स्क्लेरोटीनिया, कॉलिटोट्राइकम एंड फाइटोप्थोरा। देन नेक्स्ट है फैकल्टेटिव पैरासाइट। सो फैकल्टेटिव का मतलब क्या हुआ कि ये कभी कभी पैरासाइट रहेंगे, मतलब कि ये मेनली क्या है, सैप्रोफाइट्स है। ठीक है, सो दे आर एक्चुअली सैप्रोफाइट्स बट दे कैन ऑल्सो मैनेज टू सर्वाइव एज पैरासाइट इन द एब्सेंस ऑफ डेड डिकेइंग मैटर। अगर डेड डिकेइंग मैटर नहीं मिला तो ये एज अ पैरासाइट भी सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है, एंड इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फ्यूजेरियम, ऑल्टरनेरिया एंड राइजोक्टोनिया। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा दैट व्हाट आर पैरासाइट्स एंड सैप्रोफाइट्स। सो ये जो सैप्रोबिक फंजाई होते हैं यही फंजाई क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स, एंड ये क्या करते हैं, ये हमारे जो सॉइल में जो भी कार्बन प्रेजेंट होते हैं और फिर मिनरल जो भी होते हैं वो उसको कार्बन साइकिल और मिनरल साइकिल को मेंटेन करते हैं, एंड साथ ही साथ जो भी डेड वेजिटेशन जो प्रेजेंट होती है जिसमें कि लिग्निन होता है उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। सो वी स्टडीड अबाउट द पैरासाइट्स एंड सैप्रोफाइट्स, एंड नाउ जो थर्ड टर्म बची थी वो थी क्या, सिम्बायंट्स। सो सिम्बायंट्स क्या है, सिम्बायंट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि किसी अदर ऑर्गेनिज्म के साथ क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, एंड जिसमें कि दोनों जो ऑर्गेनिज्म या फिर बोले तो दोनों जो पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो सिम्बायंट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव्स इन क्लोज लॉन्ग टर्म एसोसिएशन विथ अनदर ऑर्गेनिज्म वेयर बोथ पार्टनर्स में बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो दोनों ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक दूसरे पे फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए, एंड अगर इसमें से कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर नहीं रहा देन दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ईच अदर। सो अब जो सिम्बायंट्स हैं इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सो इसके एग्जाम्पल्स हैं माइकोराइजा, लाइकेंस।
सो फर्स्ट हम माइकोराइजा देख लेते हैं. सो symbiotic association between the fungi and roots of higher plant is known as mycorrhiza. जो भी फंजाई और जो हायर प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उनके बीच का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसे ही हम माइकोराइजा बोलते हैं. ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म कर रहे हैं. सो ये जो फंजाई है वो क्या करता है, वो प्लांट्स की जो रूट्स हैं उन्हें हेल्प करता है जितने भी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में उनको अपटेक एंड अब्जॉर्ब करने में. साथ ही साथ ये फंजाई मिनरल्स की सप्लाई करता है रूट्स को, स्पेशली कौन कौन से मिनरल्स, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. वहीं पे इसके बदले में जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो प्रोवाइड करती हैं फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड साथ ही साथ शेल्टर प्रोवाइड करती हैं फंजाई को. ठीक है, सो इस तरीके से फंजाई और जो रूट्स होते हैं हायर प्लांट्स की ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहकर और क्या फॉर्म करती है, माइकोराइजा. उसके बाद नेक्स्ट है लाइकेन. सो लाइकेन जो है दिस इज बेसिकली द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड एल्गी. जो फंजाई और एल्गी का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, लाइकेन. सो इसमें क्या होता है कि ये फंजाई जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एल्गे को हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में एंड सेफ मॉइस्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है रहने के लिए. वहीं पे एल्गी क्या करता है, इसके बदले में ये जो फंजाई है उसको खाना प्रोवाइड करता है बाय फोटोसिंथेसिस. सो फंजाई इसमें क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन एंड वाटर सप्लाई कर रहा है टू एल्गी एंड रहने के लिए एक सेफ एंड मॉइस्ट प्लेस प्रोवाइड कर रहा है या सेफ एंड मॉइस्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है एल्गी को, जबकि एल्गी क्या कर रहा है, इसके बदले में फंजाई को खाना प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, सो दिस वर द एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायंट दैट इज माइकोराइजा एंड लाइकेन. सो वहीं पे अगर हम ऐसे फंजाई की बात करें जो कि किंगडम प्रोटोजोआ से बिलोंग करते हैं, सो इनमें क्या होता है कि मिक्स अमीबा या फिर प्लाज्मोडिया होता है एंड ये बैक्टीरिया को इंजेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया. सो इस तरीके से ये क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे. बाकी की जो भी कैरेक्टर्स बच गई हैं उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. And thanks for watching this video till the end. Keep learning with AgriMed Easy. Bye bye and have a great day.